وطن عزیز کے خلاف سازش مزید واضح ہونے لگی۔ محسن داوڑ نے پاک فوج کے وزیرستان سے نکل جانے کا مطالبہ داغ دیا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں محسن داوڑ نے کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کے مطالبے دہرا دیے۔ کیا محسن داوڑ پھر جنوبی وزیرستان کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں؟ محسن داوڑ خرکمر چیک پوسٹ پر حملے کے بعد سے روپوش ہے۔ پاک فوج وزیرستان سے واپس کیوں جائے؟ یہ باہر کی نہیں، پاکستان کی اپنی فوج ہے۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم والے چاہتے ہیں وہاں دوبارہ دہشت گرد آ جائیں۔ فوج تب تک رہے گی جب تک مکمل امن نہ ہو جائے۔ یہ لوگ شاید نہیں چاہتے کہ وہاں امن ہو۔ انہوں نے فوج پر حملہ کیا، کیا پشتونوں کے لیے صرف بندوق اٹھانا رہ گیا؟ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے منی لانڈرنگ اور غیر اعلانیہ اثاثے رکھنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ بی بی سی لندن میں 80 ملین پاؤنڈ مالیت کی 3 جائیدادوں کے مالک سے ذرائع آمدن کے حوالے سے پوچھ گچھ۔ المصطفیٰ ٹرسٹ اور جامع مسجد ہانسلو کے زیر اہتمام افطار پارٹی، لیبر پارٹی ایم پی سیما ملہوترا سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات شریک۔ برسٹل میں برطانیہ کی سب سے بڑی افطار پارٹی کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ ایسٹرن جامع مسجد کے پاس کل ہزاروں افراد افطاری کریں گے۔ مقامی شہری اور مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی شریک ہوں گے۔ لیڈز کی مسجد ابو ہریرہ میں سابق لارڈ میئر کونسلر محمد اقبال کی طرف سے افطار ڈنر کا اہتمام۔ اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی سیاسی و سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت۔ ملک و ملت کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعائیں۔ ساؤتھ ہال میں ایرانی اور پاکستانی کھانوں کے نئے مرکز السلطان ریسٹورنٹ کا افتتاح۔ ڈپٹی میئر ایلنگ منیر احمد، ایم پی وریندر شرما کی خصوصی شرکت۔ السلطان ریسٹورنٹ میں ایک ہی وقت میں 80 ایرانی اور 120 پاکستانی ڈشز دستیاب ہوں گی، انتظامیہ کا اعلان۔ سعودی دارالحکومت ریاض، اسپین کے شہر بارسلونا میں یوم تکبیر کی مناسبت سے تقاریب۔ لیگی کارکنوں کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی شریک۔ یوم تکبیر کا کیک بھی کاٹا گیا۔ نائنٹی ٹو نیوز دیار غیر میں بسے پاکستانیوں کی مضبوط آواز، ذمہ دارانہ کوریج رنگ لے آئی۔ ملائیشیا میں قید پاکستانی قومی ایئر لائن کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئے۔ رہائی ملنے پر پاکستانی اشکبار، وزیر اعظم عمران خان کے حق میں نعرے بازی۔ دل کی بات زباں پر آ ہی گئے۔ محسن داوڑ نے شمالی وزیرستان کی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کر کے خرکمر چوکی پر حملہ آور ہونے کی وجہ اور حقیقت خود ہی بیان کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو سے حقیقت دنیا کے سامنے آشکار ہو گئی کہ محسن داوڑ عام دشمنوں کے ہاتھ کا کھلونا ہے۔ خوشبو جو تیری آئے تیری ہوا سے ہمیں پیار ہے۔ پاکستان دشمن قوتوں کی دیرینہ خواہش محسن داوڑ کی زبان پر آ گئی۔ شمالی وزیرستان سے فوج کے انخلاء کا مطالبہ کر کے خرکمر چوکی پر حملہ آور ہونے کی وجہ اور حقیقت خود ہی بیان کی۔ لازوال قربانیاں دے کر دہشت گردوں کا صفایا کرنے والی پاک فوج کی شمالی وزیرستان میں موجودگی دشمن قوتوں کے مذموم مقاصد کی تکمیل میں رکاوٹ ہے۔ محسن داوڑ کا مطالبہ کالعدم ٹی ٹی پی اور دوسرے دہشت گردوں کے موقف کی حمایت ہے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں فوج کے انخلاء کے مطالبے کے بعد حقیقت
حقیقت دنیا کے سامنے آشکار ہو گئی کہ محسن داوڑ امن کے دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ پاک فوج نے علاقے سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، دہشت گردوں کو مار بھگایا۔ ٹی ٹی پی جیسے گروپوں کے ہینڈلر محسن داوڑ کے انٹرویوز کی عالمی میڈیا پر تشہیر کرا رہے ہیں۔ ملکی سلامتی کے اداروں پر ماضی میں تنقید کرنے والوں کا پھر زہر اگلنا اصل گیم کو عیاں کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف گزشتہ 6 ماہ سے بین الاقوامی میڈیا مذموم عزائم کے تحت برسرے پیکار ہے۔ چند ماہ کے دوران حقائق کے برعکس 300 سے زائد نیوز رپورٹس جاری ہوئیں۔ بی بی سی اردو نے 160، وائس آف امریکہ اردو نے بھی 160 مرتبہ پاکستان کے خلاف جانبدارانہ رپورٹنگ کی۔ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا بین الاقوامی میڈیا انڈیا میں ہونے والے واقعات پر بھی اسی طرح رپورٹ کرتا ہے؟ بھارت میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہندتوا تحریک کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ کیا عالمی میڈیا بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کے خلاف بھی آواز اٹھاتا ہے؟ عالمی میڈیا بھارت میں نیکسٹ لائٹ تحریک پر کوئی رپورٹ کیوں جاری نہیں کرتا؟ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی عالمی میڈیا سے کیوں اوجھل ہے؟ رازداری اب رازداری نہیں رہی، عالمی طاقتوں اور بین الاقوامی میڈیا کی جانبداری سے سب کچھ عیاں ہو گیا۔ پاکستان دشمن قوتوں کی آنکھ میں امن اور بہادر فوج کی کامیابیاں کھٹک رہی ہیں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ المصطفیٰ ٹرسٹ اور جامع مسجد ہانسلو کے زیر اہتمام ایک بڑے اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ افطار پارٹی میں MP لیبر پارٹی سیما ملہوترا سمیت دیگر غیر مسلم سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لندن کے علاقے ہانسلو کی مصروف ترین ہوئی اسٹریٹ کے وسط بیل اسکوائر پر افطاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلم اور غیر مسلم افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر لیبر پارٹی کے اہم رہنماؤں سمیت دیگر سماجی معروف شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے مہمانوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اسلام کی اصل تعلیم اور عمل کو عام کرنے سے افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لوگوں تک بھائی چارے اور صبر و برداشت کے درس کو عام کیا جا سکتا ہے۔ افطاری میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے دوسرے مذاہب کے افراد کو رمضان کا تقدس اور اہمیت بتانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس موقع پر لیبر پارٹی کی MP سیما ملہوترا اور آئزل ورتھ سے لیبر پارٹی کی MP روتھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کا درس ہر مذہب دیتا ہے، جس کو عام کرنے سے ہی معاشروں میں اخوت اور محبت کے ساتھ میل جول کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ Delighted to be here for this street iftar organised by the Al Mustafa Welfare Trust and the Hounslow Jamia Masjid. We see everybody coming together, a true example of how during Ramadan this is a time of giving, of sharing, of giving support to people, but also bringing together everybody in a strong community spirit inspired by the values of Islam. And I'm here in the middle of Hounslow at Hounslow's first street iftar, which is a wonderful expression of community sharing and people sharing their religion, their faith, their culture and welcoming everybody to this event. So I'm very pleased to be here today. یہ بہترین کام ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر کسی کو یہ کام کرنا چاہیے اور افطار پارٹی کا پروگرام ہونا چاہیے۔ میری طرف سے تمام لوگوں کو رمضان مبارک۔ اس سال ایون بگر اور انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری دوسری کمیونٹیز بھی ہیں۔ اٹس اے میسج ٹو دا ورلڈ کہ اسلام جو ہے پیس کا religion hai. So this street iftar I think is a very good idea by the Hounslow Jamia Masjid. It brings the community together. Also because it's in a public area, it shows the non-Muslims how closely all the Muslims are and what a beautiful religion it really is. Inclusive ہونا چاہیے، ہر مذہب دا آدمی جڑا ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ، لیڈیز بھی آਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ اور ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਦੋ، مسجد بھی سدو، مسجد کیونکہ خدا دا گھر ہے، سارے جاندے نے۔ ہانسلو جامع مسجد کے ساتھ مل کر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے یہ افطار ڈنر ہو رہا ہے، جس میں کمیونٹی کے مختلف لوگ شامل ہو رہے ہیں، جو لوکل لوگ بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اس میں بلیک لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب لوگ مل کر ہم اس افطار کا اہتمام کیا ہے۔ In conjunction Al Mustafa Welfare Trust supported by our two councillors Javed Akhundzada and Azal Kiani صاحب، اس ایونٹ کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم from a overall street perspective
ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स उनको ये दिखाएं कि व्हाट इफ्तार इज़ ऑल अबाउट, हाउ वी मुस्लिम्स सेलिब्रेट इफ्तार एंड गेट देम इन्वॉल्वड इन इफ्तार. I wish people would not fight over religion. There is only one God, Allah, and we're brothers and sisters, and I think everyone should realise this and reach out the hand of friendship and look after each other. Everyone makes me so welcome. इफ्तारी के इख्तिताम पर हाई स्ट्रीट हॉन्सलो में अजान के बाद नमाज इशा अदा की गई, जिसमें उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआए खैर की गई. दुनिया भर में अमन और भाईचारे के फ़रोग के लिए इक़दामात करने की तलकीन की गई. लीड्स की मस्जिद अबू हुरैरा में साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल की तरफ से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें अहले लीड्स की कसीर तादाद ने शिरकत की. इफ्तार पार्टी का मजीद अहवाल आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में. साबिक लॉर्ड मेयर लीड्स सिटी काउंसलर मोहम्मद इकबाल ने जामिया मस्जिद अबू हुरैरा बेस्टर्न लीड्स में इफ्तार, रमज़ान और डिनर का एहतमाम किया, जिसमें साबिक मशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अली शान, मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स सिटी काउंसलर मोहम्मद रफ़ीक समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की. इस मौके पर काउंसलर मोहम्मद इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि रोज़ा इफ्तार करवा कर उन्हें दिली सुकून मिलता है और इफ्तार की वजह से बेशुमार दोस्त अहबाब से भी मुलाकात हो जाती है. मिलजुल कर सब मुसलमान रोज़ा इफ्तार करते हैं. ये मुसलमानों की बड़ी खूबी है कि हम पूरा दिन जो है एक एहतिजाज करते हैं, नफ्स पर कंट्रोल करते हैं और फिर मिलकर अल्लाह को याद करते हैं. ये बाबरकत अशरा है. तो इस लिहाज से मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि मेरे बड़े करीबी दोस्त यहाँ आए हैं और उनसे मिले और हमने इकट्ठे इफ्तारी की है. 92 न्यूज़ जो है जिस तरीक़ा से ये इन्होंने पूरे महीने में जो है ना ये कवरेज दी है रमज़ान शरीफ के हवाले से और चैरिटी इवेंट्स के हवाले से और फलाह बहबूद जो काम हो रहे हैं उनके हवाले से, मैं समझता हूँ कि किसी और चैनल ने कम ही इतने जो है कवरेज दी होगी. इफ्तारी का स्वाब बेशुमार है. अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से लोगों को इफ्तार कराई जाती है, इसमें मैं इनको भरपूर क्रेडिट देता हूँ. और ये गेट टुगेदर होती है, कम्युनिटी बैठ मिल के खुशी मनाते हैं. ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है. तमाम साथी जितने भी थे अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ जमा थे और ये स्वाब देरैन उन्होंने हासिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान का आखिरी हशरा है और ये नेकियां समेटने का टाइम है. शुरका की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ुह की गई. आखिर में शुरका और रहनुमाओं ने मेज़बान काउंसलर इकबाल का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया. आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स. 30 मई को ब्रिस्टल में सेंट मार्कस रोड ईस्टर्न जामे मस्जिद के नज़दीक सालाना ग्रैंड इफ्तारी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई. इस हवाले से देखिए तनवीर बुखारी की ये रिपोर्ट. बैनुल मज़हब इफ्तार डिनर का एहतमाम मुस्लिम फॉर ब्रिस्टल कम्युनिटी ग्रुप की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है. इस हवाले से चीफ कांस्टेबल एवन एंड समरसेट कांस्टेबलरी एंडी मार्श ने भी अपनी 3 साला मुलाजमत में मुसलमान कम्युनिटी की मेहमान नवाजी और उनके इखलाक की खूब तारीफ की. Since I became chief, which is over 3 years ago now, I've been overwhelmed by the warmth, hospitality and inclusivity of our Muslim communities in Avon and Somerset and Bristol, which is what makes the iftar such a fantastic event for people to come together at the breaking of fast in a spirit of inclusiveness and community. I hope everyone present has an absolutely fantastic time. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर समेत दीगर अफराद का कहना था कि ब्रिस्टल के मुसलमान अपने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत के लिए बेताब हैं. हमने इन्विटेशन जो है वसी किस्म की लार्जर कम्युनिटी को भेजी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कम्युनिटी भी इंशाल्लाह हमारे साथ ताउन करेगी और इंशाल्लाह उस दिन एक यूनिटी और भाईचारे का जो है मुज़ाहरा वो इंशाल्लाह हम भरपूर किस्म का इंशाल्लाह कम्युनिटी के सामने पेश करेंगे. शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, बोलते बहुत अच्छा इवेंट किया था. अभी ये तीसरा जा रहा है हमारा, तो सभी लोग को वेलकम हो. जो आप आ सके एवरीबॉडी इज वेलकम. जो भी रिलीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पीसफुल रिलीजन है. Welcome, you're invited especially to the Grand Iftar on Wednesday the 30th of May on St Mark's Road in Easton here in Bristol. Everyone is welcome. It's an opportunity for Muslims and non-Muslims to gather and sit together and break fast together. This is such an important event and it's had such a good image all around the world. It's the biggest in the UK and the biggest in Europe, the biggest iftar outside iftar in Europe. It's a fantastic opportunity for us as Muslims to share this fasting experience and the opening of the fast with all our non-Muslims and the communities. And it really gives us an opportunity to share this special time and this special month. ब्रिस्टल में होने वाला ये ग्रैंड डिनर बरतानिया की सबसे बड़ी इफ्तार की तकरीब समझी जा रही है. अवाम की तादाद इस कदर मुतवक्की है कि यह तादाद ब्रिस्टल में तारीख रकम कर देगी. तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल.
लंदन में एशियाई खानों के मशहूर इलाके साउथ हॉल में पहली मरतबा ईरानी और पाकिस्तानी खानों के इम्तजाज से अल सुल्तान के नाम से मुनफरिद रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया गया। पुरवकार इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर एलिंग मुनीर अहमद, MP वरिंदर शर्मा और सुल्तान हयात ने रिबन काट कर बाकायदा ओपनिंग की। मुनफरिद रेस्टोरेंट के बारे में मजीद तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मन भाते खावे किसको नहीं भाते। दियारे गैर में लोग मन पसंद और लजीज खानों की तलाश में मीलों मील सफर करते हैं। एशियाई कम्युनिटी अपने रवायती खानों की दिलदादा है। लंदन के इलाके साउथ हॉल में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ बिजनेसमैन सुल्तान हयात ने ईरानी और पाकिस्तानी जायके को एक छत तले मुतारफ करा के अपनी नौयत का पहला रेस्टोरेंट ओपन कर दिया है। एशियाई खानों के गढ़ समझे जाने वाले साउथ हॉल में अल सुल्तान वो वाहिद रेस्टोरेंट होगा जहां पर मेन्यू में एक ही वक्त में 80 से ज्यादा ईरानी और 120 से ज्यादा पाकिस्तानी डिशें दस्तयाब होंगी। चिकन टोस्ट, मटन कढ़ाई, पुलाव, बिरयानी इस रेस्टोरेंट में ऐसी लजीज तैयार की जाती है कि जो एक बार खाए वो बार बार आए। ढोल की थाप पर इफ्तिताही तकरीब के मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। जदीद तर्ज के इस किचन में एक ही वक्त में 250 से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया जा सकेगा। पहली मर्तबा कस्टमर्स के लिए मुफ्त पार्किंग की सहूलत भी मुतारफ कराई गई है। ईरानी चलो कबाब हों या जाफरानी चावल, लाहौरी चने हों या फिर कराची की निहारी, सब आपको मिलेंगे एक ही छत तले। रेस्टोरेंट के इफ्तिताह पर मेहमान खसूसी डिप्टी मेयर मुनीर अहमद ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि इनके इलाके में जदीद तर्ज का 2 अलग तहजीबों के मिलाप से खानों का मरकज खोला गया है। आज के ज़माने में जब ब्रेक्सिट हो रहा है और जॉब्स कट हो रही हैं, इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की इनिंग में, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब साउथ हॉल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। पूरे UK में साउथ हॉल का अपना एक नाम है, तो मेरे ख्याल में जो भी साउथ हॉल में इन्वेस्ट करेगा वो गलत नहीं हो सकता। और इनका भी मैं जो रेस्टोरेंट है ये यहाँ चलना चाहिए और अल्लाह ताला करे कि इनको तरक्की मिले। तकरीब के मेहमानों ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लोग जो है ना सारा ईलिंग जाते हैं, ब्रॉडवे, एजवे रोड जाते हैं, और साउथ हॉल में तो पर्शियन फूड था ही नहीं। तो मैंने जब एक माइंड में आया कि चलो एशियन तो है ही ऑलरेडी कम्युनिटी एंड इट इज़ अ डिमांड फॉर पीपल ना, पीपल वर ट्रैवलिंग ऑल द वे, तो मैंने ये फैसला किया कि इट विल बी अ प्योरली पर्शियन। 2 एशियन शेफ रखे हैं हमने, 2 पर्शियन रखे हैं। इट विल बी सर्व्ड इन अ पर्शियन वे। बड़े अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे कि ऐसा खाना हो या ऐसे कम्बिनेशन हो जिसमें पर्शियन और एशियन खाने इकट्ठे मिले, क्योंकि आमतौर पे जो होते हैं एक ही तरह के होते हैं। तो आज बड़ी अच्छी एक एडिशन हुई है साउथ हॉल में। अल सुल्तान रेस्टोरेंट सुल्तान साहब ने शुरू किया है, बड़ी तादाद में लोग आए थे। ये पहला रेस्टोरेंट है जहाँ एशियन और दूसरे खाने मिक्स पर्शियन खाने मिलेंगे, और खाने इट वाज वंडरफुल, द टेस्ट वाज एब्सोल्युटली डिलीशियस। ऐसे लगता था जैसे घर का खाना बना हुआ है। मेरे ख्याल में जो ये एरिया है इसमें ये चीज़ यूनिक है, जहाँ पे एक जगह पे आपको दोनों चीज़ें मिल जाएं। अल्लाह करे कि इनको कामयाबी मिले। अभी माशाल्लाह खाना टेस्ट किया हमने और बहुत मज़े का खाना था। इट्स अ डिफरेंट कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट न्यू ओपनिंग हुई है, जिसमें कि पर्शियन खाने भी हैं और पाकिस्तानी खाने भी हैं, और जो लोगों ने बहुत लुत्फ़अंदोज़ होकर खाए हैं और उनको बहुत मज़ा आया। और इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक हेयर, एंड आई विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। इसमें पर्शियन और एशियन खाने हैं और इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सब लोगों को मौलाना और पर्शियन पैलेस ईलिंग में जाना होता था, और अब दोनों चीज़ें साउथ हॉल में मिलेंगी, एंड दिस इज़ रियली वेरी हैप्पी न्यूज़ फॉर एवरीवन। कि मुसलमानों का ये रेस्टोरेंट खुला है, अल्लाह करे ये चले। हम बहुत खुश हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ के ऑनेस्ट आदमी, मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला है अल सुल्तान रेस्टोरेंट के नाम से, जो कि पहला पर्शियन और इंडियन रेस्टोरेंट है एक ही छत के नीचे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था और बहुत मज़ा आया। MP वरिंदर शर्मा ने इस मौके पर अल सुल्तान के मालिक सुल्तान हयात को तारीफ शील्ड भी पेश की। Our business and commercial and commerce president for our special wing. Therefore, I would like to request Sharma Saab and Mayor Saab and President Kala Khan Saab to present this to Janab Sultan Hyatt Saab.
इफ्तिताही तकरीब में मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा ज़हदा नूरी, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, मुश्ताक लाशारी, कैसर गोंदल, राजा सिकंदर, राजा मजहर हयात, मोहसिन बारी, आसिफ खान, हाजी मुनीर, आमिर भट्ट, इजाज खान और दीगर अफराद ने शिरकत की। आखिर में रेस्टोरेंट की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। 92 न्यूज़ ने दियारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने की रवायत बरकरार रखी है। मलेशिया में सज़ा पूरी हो जाने के बावजूद कैद पाकिस्तानियों की आवाज़ बना तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी नोटिस लेते हुए पाकिस्तानी कैदियों की वापसी का हुक्म दे दिया। कौमी एयरलाइन के जरिए ये कैदी वापस पहुँच गए हैं। इसी पर देखिए जावेद रहमान की ये रिपोर्ट। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हम हैं 92, आवाज हमारी 400। इसका अमली सबूत मलेशिया से वापस आने वाले पाकिस्तानी कैदियों के चेहरों पर पाए जाने वाले इत्मीनान और खुशी की सूरत में देखा जा सकता है। मलेशिया में कैद पाकिस्तानियों की खबर 92 न्यूज़ ने सबसे पहले नशर की, जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि सैकड़ों पाकिस्तानी कैदी ऐसे हैं जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मलेशिया में मुअत्तल हो चुका है, जिसकी वजह से ये कैदी रिहा नहीं किए जा सके। 92 न्यूज़ इनकी आवाज बना और हुकूमती ऐवानों तक इनका एहतजाज पहुंचाया तो इमरान खान ने PIA को हुक्म दिया कि इन कैदियों को ईद से पहले पाकिस्तान लाया जाए ताकि वो अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मना सकें। PIA का बोइंग 777 चाइना की फजाओं से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी, कैदियों के दोस्त अहबाब, अहले खाना, मलेशिया में तैनात चार्ज डी अफेयर्स मियां आतिफ शरीफ और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर तमश जंजुआ ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और 92 न्यूज़ की आवाम दोस्त काविशों को खुसूसी तौर पर जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। खास तौर पे जो हमारे 92 न्यूज़ चैनल के स्टाफ मेंबर हैं, ख़ास तौर पे सारे इधर कोलालमपुर में, इनका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये आवाज़ हमारी जो है पाकिस्तान तक पहुँची। 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने में भरपूर हिस्सा लिया है। 92 न्यूज़ की बहुत बहुत शुक्रिया जो कि यहाँ पर आए, गरीब लोगों के लिए आए और ख़ासकर इमरान खान जो हैं इसके लिए भी हमारी सारी दुआएं उसके लिए, क्योंकि वो लोग गरीब लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान वज़ीर आज़म का शुक्रगुज़ार है कि उसने खुसूसी तैयारा मलेशिया में कैदियों के लिए भिजवाया और फिर बहान में न्यूज़ का 92 न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार है कि वो उन लोगों ने ये आवाज़ उठाई और हुक्मरान तक पहुँचा दी। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब का और पाकिस्तान हुकूमत का जिन्होंने एफ़र्ट किया और सब पाकिस्तानी ईद करने अपने घर जा रहे हैं जो यहाँ जेलों में कैद थे। एयरपोर्ट बंद होने की वजह से हमने 3.5 महीने इधर स्टे करनी पड़ी है तो जेल में, तो इंशाल्लाह हम इमरान खान के शुक्रगुज़ार हैं। हमें भी पता चला है कि हमारा कोई पीछे है ताकतवर जो हम लोगों को जहाँ से भी है निकालने की कोशिश की है और उसने, और उसका हम शुक्रगुज़ार हैं और बहुत बहुत थैंक यू। हम 2 महीने की सज़ा के बाद पाकिस्तान वापस जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं 92 चैनल का भी, उन्होंने हमारे लिए इतनी आवाज़ उठाई। सर बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और 92 चैनल के लिए भी। कोलालमपुर का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा गुज़श्ता 2 माह से बेगुनाही की कैद काटने पर मजबूर पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। मलेशिया में पाकिस्तान के कायम मकाम हाई कमिश्नर मियां आतिफ शरीफ, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर तमश जंजुआ, वीजा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर, PIA के कंट्री मैनेजर जकरिया जफरुल्लाह ने पाकिस्तानी कैदियों को बड़े पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, कोलालमपुर, मलेशिया। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम तकबीर की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें लीगी वर्कर्स की बड़ी तादाद के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान ने भी भरपूर शिरकत की। इसी पर देखिए उमैर अली की ये रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्किद होने वाली तकरीब से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि यौम तकबीर हमारी तारीख का रोशन बाब है। इस रोज पाकिस्तान न सिर्फ नाकाबिले तस्खीर हुआ बल्कि खित्ते में अमन का जामिन भी बना।
तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के नायब सदर सेठ आबिद ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके कौम को सुरखरू कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और अपने मुल्क का दिफा करना जानती है। आज हम साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने मुल्की दिफा को बेहतर बनाने की बुनियाद रखी। जब मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे उस वक्त अमेरिका की तरफ से $5 अरब ऑफर किया गया था, मियां साहब ने वो ठुकरा दिया और इंडिया के 6 के मुकाबले में 5 के मुकाबले में 6 धमाके करके ये साबित कर दिया कि मियां नवाज शरीफ किसी पैसे के लालच में नहीं आता। मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना ने कहा कि हम पार्टी कायद नवाज शरीफ के साथ होने वाली हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी को मजबूत बनाने और सियासी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। तकरीब से सरदार शुएब सिद्दीकी, नासिर, जाहिद भट्ट और दीगर ने भी खिताब किया। आखिर में यौम तकबीर का केक भी काटा गया। यौम तकबीर पाकिस्तानी तारीख का अहम तरीन मोड़। पाकिस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके भरपूर कुव्वत का मुजाहरा किया। इसी सिलसिले में स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं शाहिद अहमद शाहिद इस रिपोर्ट में। यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मोड़, जब पाकिस्तान ने इंडिया के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को बलोचिस्तान के जिला चागी के मकाम पर 6 एटमी धमाके करके अपनी भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा किया और दुनिया भर में ऐलान किया कि हम दुनिया की 7वीं एटमी ताकत हैं। इसी सिलसिले में बार्सिलोना में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग स्पेन के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून हाफिज अमीर अली आवान थे। तकरीब में बड़ी तादाद में लीगी वर्कर्स और ओहदेदारान शरीक हुए। हाफिज अमीर अली आवान का कहना था कि आज का दिन तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाना चाहिए और इसे अवामी सतह पर मनाया जाना चाहिए, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि एटमी धमाके करने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ नाकर्दा गुनाहों की पादाश में जेल में हैं। यौम तकबीर मैं समझता हूँ हमारी ईद से पहले ईद है और ये पाकिस्तान का इस्तेहकाम है। ये नाकाबिले तस्खीर एक हमारा ऐसा काम है जो शायद हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये एक बेहतरीन हमारा मावन साबित होगा। इसके जो खालिक हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो बदकिस्मती से आज जेल में पड़े हैं और ये हमारी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को इस वक्त बाहर होना चाहिए था। 28 मई 1998 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को मजबूत बनाया और उसके बाद 2014-15 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुआशी धमाके सी पैक की सूरत में करके पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाया। आज मुस्लिम लीग यूथ विंग बार्सिलोना स्पेन पूरी पाकिस्तानी कौम को 28 मई पे मुबारकबाद पेश करती है और हमें ये दिन पूरे जोश और जज्बे से मनाना चाहिए। पूरी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग स्पेन के ज़ेरे इत्माम आज बार्सिलोना सिटी में यौम तकबीर बड़े जोश और जज्बे से मनाया गया। इस टाइम पे ऊपर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्लाम अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया और पूरी दुनिया में आज हम अपना सर फख्र से बुलंद करके चल रहे हैं। तकरीब से शहजादा उस्मान, चौधरी अदील, चौधरी आबिद और रिजवान गुजर ने भी खिताब किया। आखिर में मेहमानों के लिए अफ्तार डिनर का एहतमाम था। इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में पाकिस्तान के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया, जिसे कौम आज भी खराज तहसीन पेश करती है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। दुनिया भर की तरह रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में भी पाकिस्तान कम्युनिटी की जानिब से अजीमुशान इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें 40 से ज़ायद ममालिक के मुसलमान शरीक हुए। इसी पर देखिए शाहिद गुमन की ये रिपोर्ट। तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के सदर खलीलुर रहमान और चेयरमैन नूर हबीब शाह ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खुशी का मौका है कि इन्हें अफ्तारी कराने का मौका दिया गया, जिसे आइंदा भी जारी रखेंगे। मुकद्दस महीने में रूस की जो मस्जिद है वो हमें हर साल ये मौका देती है कि हम एक दिन पाकिस्तान कम्युनिटी के नाम करें
اور پاکستان کمیونٹی کی طرف سے پورے آنے والے مہمان جو یہاں پہ 1300-1400 کے قریب مہمان آتے ہیں ان کو کھانا بھی کھلائیں اور ثواب دوران بھی حاصل کریں. اس سال میرے ساتھ بہت سے دوست بھی ہیں, انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. На самом деле рынок обманывает нас, говоря нам «бери», а на самом деле говорит нам «отдавай». И человек отдает свое богатство. Богатство, которое бы он мог потратить на пути Аллаха. Богатство, которым бы он мог поделиться с нуждающимися. افطاری کی تقریب میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری پر مبنی ڈاکومنٹری روسی زبان میں دکھائی گئی. تقریب میں حاضرین سے اسلام اور پاکستان کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات کیے گئے, جن کے جوابات پر انہیں تحائف بھی پیش کیے گئے. 100 کی تعداد سے زیادہ پاکستانیوں نے شرکت کی ہے اور مجموعی طور پر 1300-1400 بندوں نے یہاں پہ افطاری کی ہے. اور ماسکو کی مسجد میں آج رمضان المبارک کا دن منایا جا رہا ہے, افطاری کا پروگرام ہے. پاکستانی روس جیسے ملک میں منظم ہو کر کے پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے, اور پاکستان کے بارے میں آج جو یہاں پر فلمیں چلی ہے, جو پاکستان کی موجودہ حالات جو کہ دکھائی گئی کہ پاکستان واقعی جو دنیا میں ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, اس طرح نہیں. Пакистанцы молодцы, все делают хорошо, высшем уровне, я очень доволен. Иншаллах, еще раз приеду сюда. Все, спасибо, ребята, вам большое. پوری دنیا کے جو کنٹریز ہیں وہ ایک ایک شام ان کے نام ہوتا ہے. اس دن ہم اپنے کلچر اور اسلام کے بارے میں اپنا پیغام دیتے ہیں, اور ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے بارے میں یہاں لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا ملک کیا ہے, ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. تو ماسکو کے دل کے اندر ہر سال اس مسجد میں ہم یہ پروگرام کرتے ہیں اور اپنے ملک اور قوم کا نام یہاں پہ روشن کرتے ہیں. مشکور ہوں ہماری ضمن چستوا کا, ہماری کمیونٹی کا, کہ جنہوں نے یہ پروگرام منتخب کیا اور ساروں کو ملنے کا اور ہم کیا نام ہے اکٹھے ہونے کا موقع ملا. آنے والے سالوں میں اس میں مزید ترقی ہو اور بڑھ چڑھ کر پاکستانی کمیونٹی اور رشین کمیونٹی مل کے جو ہے ان چیزوں کو آگے چلائے. پاکستانی کمیونٹی روس کے چیئرمین نور حبیب شاہ نے افطاری کے اس تقریب میں بھرپور حصہ لینے اور اہم امور سر انجام دینے والے افراد میں اسناد بھی پیش کی, جبکہ افطاری میں مختلف اقسام کے کھانوں اور مشروبات کا انتظام کیا گیا. ماسکو کی میموریل مسجد میں رمضان کا پورا مہینہ ہر دن کسی ملک کو نمائندگی دی جاتی ہے کہ وہ افطاری کروائے. ایک دن ایک ملک کے نام ہوتا ہے, اور آج کا دن پاکستان کے نام تھا, اور پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کر کے افطاری کے پروگرام میں حصہ لیا, اور پاکستانیوں نے نہ صرف حصہ لیا باقی 40 کے ممالک کے قریب مسلمانوں نے یہاں شرکت کی اور زبردست انداز میں افطاری کی. شاہد گمان 92 نیوز ماسکو روس. 9 PM پرائم ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے وابستہ ویب سائٹ 92 News HD.tv. تو دیکھتے رہیے 92 نیوز.